So once again, I welcome in the course Introduction to Fluid Mechanics, and very good morning to all of you. So today I will discuss the new module, that is pipe flow. And in pipe flow, firstly I will discuss the condition for the laminar and turbulent flow that we have already discussed. But for the so after that I will discuss the different types of losses in the pipe flow, like what is the major head loss and the minor head loss, and then we will solve problem based on this. So in the pipe flow, firstly I will discuss the most of the in the field, the most of the flow in the pipe is generally turbulent. So there are two types of flow. The first flow is in pipe flow. In pipe flow, if flow is laminar, then our Reynolds number that we have already discussed, that is less than equal to 2000, and at critical it will be exactly equal to the 2000. Similarly, if in pipe flow, if flow is turbulent, then our Reynolds number should be greater than 4000, and in between 2000 to 4000 our flow will be in transition, where R is the Reynolds number. RE जो है हमारा क्या है, Reynolds number, that is the ratio of inertia force by viscous force. And if I see the expression, so rho V into D divided by mu, or we can write V into D divided by mu, where V is the velocity in the pipe, velocity of water in the pipe, and D is the diameter of the pipe, mu is the dynamic viscosity, and mu is the kinematic viscosity. These things already discussed in the laminar flow. So there are two terms there in pipe flow. In practice, in field, most of the flow in pipe is of the type of turbulent. In practically the flow will be turbulent, but in sometimes if it is given that the flow is laminar, so we have to consider as a laminar. So there are two types of head loss. So head loss, if I discuss in the pipe flow, so there are two types of head loss. One is called major head loss. And the second one is called minor head loss. This major head loss is further divided into, can be computed by two equations. One is called Darcy-Weisbach equation, and second one is called Chazy's equation. Similarly, the minor head loss can be computed due to the head loss due to sudden expansion, or we can say enlargement, loss due to sudden contraction. Similarly, head loss due to entry of the pipe, loss due to entry or entry loss, or similarly we can say the exit loss, and the head loss due to pipe bend. So these are the five types of minor head loss. The head loss due to the sudden expansion, हमने एक पाइप स्मॉलर डायमीटर का पहले लगाया था, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने डायमीटर को बढ़ा दिया, तो सर्टेन इनलार्जमेंट हुआ, तो वहां पे भी आपका लॉस होगा. हमने क्या किया, लार्जर डायमीटर को ला रहा था कुछ लेंथ तक, उसके बाद हमने क्या कर दिया, स्मॉलर डायमीटर को यूज कर दिया, तो हमारा वहां पे भी लॉस होगा. जैसे एंट्री होगा पाइप में तो वहां पे भी लॉस होगा, एग्जिट के वक्त भी लॉस होगा, और जब हमारा पाइप बेंड हो जाता है, जनरली आप देखते होगे कि जब आप इरिगेशन कर रहे हो या कुछ भी अगर करते हो तो देखते हो कि जैसे पाइप बेंड हो गया तो आपका फ्लो रुक जाता है, तो वो भी एक लॉस है. तो लॉस ड्यू टू द पाइप बेंड्स, और वो जो लॉस बेंड जो होगा वो वेरियस टाइप्स का होगा, या जो बेंड्स जो होंगे
तो आपका जैसे देखा जाता है कि हमें बहुत एक से ज्यादा जगह फ्लो देना है, तो हम क्या करते हैं, टी शेप का एक टी लगा देते हैं, टी शेप। उसी तरह 45 डिग्री बेंड, 50 डिग्री बेंड, हमें कुछ डायरेक्शन जो है हमें कुछ मोड़ के दूसरे जगह प्रोवाइड करना होता है वाटर, तो वहां पे हम लोग जनरली उस तरह 45 डिग्री बेंड, 90 डिग्री बेंड किया जाता है, तो वहां पे भी लॉस होगा। सारे लॉस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉस इज दैट इज कॉल्ड मेजर हेड लॉस। अगर मेजर हेड लॉस की बात की जाए, मेजर हेड लॉस, तो क्वेश्चन में बोलेगा कि एज्यूम द माइनर हेड लॉस, तो माइनर हेड लॉस को आपको नेग्लेक्ट कर देना है। अगर बोलेगा कि सारा का सारा हेड लॉस आपको लेना है, तो आपको फिर जानना होगा कि सारा हेड लॉस होता क्या है। सो मेजर हेड लॉस में सबसे पहले अगर डिस्कस किया जाए, डार्सी विशबैक इक्वेशन। हमने पहले भी बोला था, इसको हमने बताया था जब हमने लैमिनार फ्लो पढ़ाया था कि अकॉर्डिंग टू डार्सी Weisbach equation, head loss is given by HL is equal to FL V square by 2G into D, where HL is the head loss, major head loss we can say, and F is the friction factor, Darcy Weisbach friction factor, or this F can be written as 4 times F dash, where F dash is the coefficient of friction. F dash is the coefficient of friction. तो जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उस तरह हम लोग उसको यूज करेंगे। सो हियर वी कैन आल्सो राइट HL is equal to 4F dash into L V square divided by 2G into D, where V is the velocity, L is the length of the pipe, and D जो होगा हमारा क्या होगा, diameter of the pipe, capital D is the diameter of the pipe। इसी को हम लोग डिस्चार्ज के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो V को अगर हम लोग Q के टर्म में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, HL can be written as HL is equal to FL Q square divided by 12.1 D to the power 5। अगर आप इसको चेंज करोगे V is equal to Q by A, यहाँ से अगर V के जगह पे Q by A और G की वैल्यू अगर आप रख दोगे तो पाई बाई 4 इंटू B स्क्वायर D to the power 4 इंटू D, तो ये आपका ये भी एक्सप्रेशन आएगा डिस्चार्ज के टर्म में। सो दैट डिपेंड्स कि किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी दी हुई है तो हम लोग वो लगाएंगे, अगर डिस्चार्ज दिया हुआ है तो कुछ इस तरह लगाएंगे। तो हेड लॉस जो होगा, मेजर हेड लॉस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द D to the power 5 डायमीटर ऑफ द पाइप से वेरी करेगा। तो ये हमारा डार्सी है। अगर जहाँ पे अगर आपका हेड लॉस अगर नहीं दिया हुआ है, अगर आपका डार्सी वेस्बैच फ्रिक्शन फैक्टर ना देके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तब हम लोग ये इक्वेशन निकालेंगे। और यहीं पे हमने एक और रिलेशन भी बताया था कि क्या है कि ये फ्रिक्शन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो फॉर लैमिनार फ्लो आपको लैमिनार फ्लो के लिए कैसे निकालेंगे, तो चलो इसको हम लोग पहले हम लोग दूसरा डिस्कस कर ले, उसके बाद फिर हम लोग एफ की वैल्यू को भी देख लेंगे कैसे 64/RE जो होता है लैमिनार फ्लो के लिए, वो हमने डिराइव भी किया था, पाया है उसके बाद। तो दूसरा जो होगा, दूसरा मेजर हेड लॉस जो होता है वो उसको बोला जाता है चेजिज इक्वेशन से। हम लोग दूसरा जो हेड लॉस निकालेंगे, मेजर हेड लॉस, वो हम लोग चेजिज इक्वेशन से निकालेंगे। चेजिज इक्वेशन क्या होता है? चेजिज इक्वेशन, सो ही हैज गिवन द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो अकॉर्डिंग टू चेजिज। आप ओपन चैनल फ्लो में पढ़ोगे इसको, अकॉर्डिंग टू चेजिज इक्वेशन वी कैन राइट V is equal to C into square root of R into S। अब क्या क्या है सब चीज को समझ लो। V is the average velocity, C जो है हमारा यहाँ पे V जो है average velocity of flow, average velocity of flow। C जो है हमारा, इसको बोला जाता है चेजिज कांस्टेंट। चेजिज कांस्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दो मैनिंग्स और चेजिज, दो आपका जो है, तो मैनिंग्स के बारे में अभी हमने नहीं डिस्कस किया है, मैनिंग्स का यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। आर जो होता है वो क्या होता है हमारा, हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? तो हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है, कोई भी पाइप है, पाइप का हमें एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, हमें जो है, मान लो कि दिस इज आवर पाइप, हमारा पाइप का जिसका डायमीटर जो है, एक पाइप है जिसकी डायमीटर जो दी हुई है, कितना डायमीटर जो है वो D है,
तो इसका अगर हाइड्रोलिक रेडियस निकालना हो तो हमने क्या बताया कि हाइड्रोलिक रेडियस दैट इज इक्वल टू एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर का क्या मतलब है कि पाइप कहां तक फुल है। मान लो कि ये पूरा का पूरा फुल है, पूरा फुल्ली रन हो रहा है या हाफ फुल है, तो उसी तरह जो हाफ का होगा हाफ ही का डायमीटर हम लोग पेरीमीटर लेंगे। तो यहाँ पे मान लिया कि हमने यहाँ पे एरिया जो हो जाएगा कितना हो जाएगा इस पाइप का, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पाई पाई कैंसिल, तो हो गया आप हाइड्रोलिक रेडियस जो हो गया पाइप फ्लो अगर रन फुल हो रहा है, अगर फुल्ली रन हो रहा है मतलब कि पूरा का पूरा जो पाइप का जितना डायमीटर बना है पूरे में वाटर फ्लो हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा हाइड्रोलिक रेडियस जो हो जाएगा वो डी बाई 4। तो हाइड्रोलिक रेडियस जो होगा अभी से याद कर लो कि बिकॉज ये ओपन चैनल में पढ़ाया जाता है हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है क्या होता है हमारा, एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर, ए बाई पी जिसको लिखा जाता है। तो ये न्यू सिलेबस में जो है, पहले ओल्ड सिलेबस में पहले ओपन चैनल फ्लो पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर, तो यहाँ से हमने डी बाई 4। तो हम हमारा क्या है, हमने मैनिंग्स इक्वेशन जो लिखा है वो क्या लिखा है, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू c इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू s। v हमने बता दिया क्या है एवरेज वेलोसिटी, c जो है हमारा चेजिस कोफिशिएंट, r जो है हमारा क्या है हाइड्रोलिक रेडियस, और s जो है हमारा क्या है, s जो है हमारा क्या है वो बेड स्लोप है। तो बेड स्लोप है तो उसको हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे इक्वेशन को, तो इक्वेशन को क्या लिखें, v इज इक्वल टू c इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू s। बेड स्लोप है तो इसको क्या लिख सकते हैं, c r की वैल्यू हमने निकाल लिया है कितना, t बाई 4, और बेड स्लोप है तो उसको क्या लिख सकते हैं, हेड लॉस डिवाइडेड बाई लेंथ। आपका यही तो होगा, कितना हेड लॉस हुआ है और कितने पर यूनिट लेंथ में हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डी इंटू एच एल डिवाइडेड बाई 4 इंटू एल। तो यहाँ से एच एल हम लोग निकाल लें, तो एच एल की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 4l वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू डी। यही हमारा मेजर हेड लॉस ड्यू टू द चेजिस कोफिशिएंट, मेजर हेड लॉस ड्यू टू द चेजिस कोफिशिएंट है। हमने देखा है डार्सी लॉ से क्या था एफएल वी स्क्वायर बाई 2gd, और यहाँ पे क्या है 4l वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। यहाँ भी डी जो है वो क्या है, डाई ऑफ पाइप। सी के बारे में लिख ही दिया है, एल जो है वो लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द पाइप। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो आवर मेजर हेड लॉस, मेजर हेड लॉस। और ये जो हेड लॉस का इक्वेशन निकाला गया है वो चेजिस इक्वेशन से, इसीलिए इसको नाम दिया गया है चेजिस इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ चेजिस इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों में अगर क्या कोरिलेट कर सकते हैं, हमने जो डार्सी से निकाला है मेजर हेड लॉस, अकॉर्डिंग टू डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन, डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन से हमने क्या निकाला है मेजर हेड लॉस। तो मेजर हेड लॉस इन ए पाइप, मेजर हेड लॉस दैट इज एच एल इज इक्वल टू क्या था, एफ एल वी स्क्वायर बाई 2g इंटू डी। और हमने अकॉर्डिंग टू चेजिस इक्वेशन से जो हमने निकाला है चेजिस इक्वेशन, यहाँ से हमने क्या निकाला है मेजर हेड लॉस, एच एल इज इक्वल टू क्या आया है अभी हमने देखा, तो 4l वी स्क्वायर बाई 4l वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू डी। अब दोनों तो हेड लॉस पाइप में ही है, तो दोनों को इक्वेट करो तो हमारे एक रिलेशन आ जाएगा चेजिस कोफिशिएंट और डार्सी वेस्टबैक फ्रिक्शन फैक्टर में। तो दोनों को अगर इक्वेट किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एल वी स्क्वायर बाई 2g इंटू डी दैट इज इक्वल टू 4l वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू डी। डी से डी कैंसिल हो गया आपका, एल से एल कैंसिल, तो क्या बच गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, तो आपका बच गया एफ डिवाइडेड बाई 2g दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको अगर किया जाए तो सी स्क्वायर एफ दैट इज इक्वल टू 8g, तो यहाँ से हम लोग c लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8g बाई एफ। तो अगर वो बोल देगा कि आपको जो हेड लॉस निकालना है वो अगर डार्सी से निकालना, सॉरी चेजिस से निकालना है, और फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू हमें मालूम है, तो हम लोग क्या c की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे c क्या है हमारा, c इज द चेजिस कोफिशिएंट, चेजिस कोफिशिएंट, और f जो है हमारा क्या है, डार्सी वेस्टबैक फ्रिक्शन फैक्टर, डार्सी वेस्टबैक फ्रिक्शन फैक्टर। तो इसीलिए हमने डिराइव कर दिया कि अगर आप एक्सप्रेशन भूल भी जाओ तो दोनों का एक्सप्रेशन अगर निकालना है, दोनों को इक्वेट करोगे तो एक एक्सप्रेशन आएगा दैट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8g बाई f। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं।
उसी तरह मैंने बताया कि जो रिनॉल्ड्स नंबर अगर दिया रहा है तो डार्सी वेस्टबेस्ट फ्रिक्शन फैक्टर कैसे निकाला जाए। डार्सी वेस्टबेस्ट तो कंप्यूटेशन ऑफ डार्सी वेस्टबैक फ्रिक्शन फैक्टर। तो दैट डिपेंड्स, ये डार्सी वेस्टबैक फ्रिक्शन फैक्टर है वो डिपेंड करेगा किस पे, टाइप्स ऑफ फ्लो पे। तो पहला अगर हम बोले कि इफ फ्लो इज लैमिनार, हमारा फ्लो जो है वो लैमिनार हो, तो कैसे हम लोग बताया था कि एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64/RE, ये हमने बताया था, एफ इज इक्वल टू 64/RE। उसी तरह अगर हमारा दूसरा हो कि हमारा जो है अगर फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाए, इफ फ्लो इज टर्बुलेंट, फ्लो हमारा टर्बुलेंट है और रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है, तो टर्बुलेंट में कितनी हो जाएगी, अगर पहला कंडीशन हम इसमें ले, फर्स्ट केस फर्स्ट कि हमारी रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो है वो कितना 4000 से 10⁵ के बीच में, अगर हमारे रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, तो यहाँ से जो हो जाएगा एफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.316 डिवाइडेड बाई REx⁴ यहाँ से हम लोग फ्रिक्शन फैक्टर निकाल सकते हैं। वहाँ आरई जो है हमारा क्या है, REx हमारा जो है वो रिनॉल्ड्स नंबर है, रिनॉल्ड्स नंबर। तो वो डिपेंड करेगा कि फ्लो क्या है, लैमिनार है तो सबसे पहले आपको रिनॉल्ड्स नंबर निकालना होगा। अगर रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम है, 2000 से कम है, तो हमारा फ्लो लैमिनार है। अगर 2000 से 4000 के बीच में है तो ट्रांजिशन है। 4000 से ज्यादा अगर आ गया है तो 4000 से आ गया तो फिर इसमें 3 केस हम लोग पढ़ेंगे कि अगर फ्लो हमारा जो टर्बुलेंट है लेकिन स्मूथ पाइप है, फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है लेकिन हमारा पाइप जो है वो स्मूथ है और रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लाइज कर रही है इतने की, तो इससे निकालेंगे। अगर दूसरा ही है कि टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है लेकिन हमारा जो रिनॉल्ड्स नंबर जो आ रहा है वो 10⁵ to 4 × 10⁷ के बीच में है और हमारा अभी भी स्मूथ पाइप है, पाइप जो है हमारा स्मूथ है, तो हम एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे 0.0032 प्लस 0.221 डिवाइडेड बाई RE⁴ 0.237। लेकिन हमारा जो टर्बुलेंट फ्लो तो हो ही रहा है लेकिन हमारा पाइप जो है वो रफ है। मतलब कि क्या है, जैसे एजिंग जैसे होगा, आपने न्यूली पाइप लिया है तो हमारा आपका पाइप स्मूथ होगा, लेकिन क्या हो जाएगा ड्यू टू रस्ट और ये होगा, हमारा पाइप जो हो गया रस्ट हो गया, तो कुछ हो जाएगा रस्टनेस के कारण क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो कि ये पाइप है, लेट अस अज्यूम दिस इज आवर पाइप, ये हमारा कुछ पाइप इस तरह का है और आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन ईयर्स क्या हो जाएगा, ड्यू टू द कोरोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रस्टिंग हो गया है, तो क्या हो गया, पाइप रफ हो गया। और इसके हाइट को हमने बोला है कि हाइट ऑफ रफनेस है, ये के जो है हमारा हाइट ऑफ रफनेस है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं जो एक्सप्रेशन है कि हमारा टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का रस्टिंग हो गया है जिसके कारण फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले फ्लो ज्यादा था, अब कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू 2 log 10 RE/K + 1.74 वेयर K इज द हाइट ऑफ रफनेस। ये जो है वो क्या है, हाइट ऑफ रफनेस, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। सो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू को कैसे निकालना है, चेजिस कोफिशिएंट की वैल्यू को कैसे निकालना है, दोनों अभी हमने देखा। मेजर हेड लॉस हमने डिस्कस किया कि डार्सी वेस्टबेस्ट से भी हम लोग निकाल सकते हैं और चेजिस इक्वेशन से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब माइनर हेड लॉस की भी बात कर ले। माइनर हेड लॉस में सबसे पहले अगर डिस्कस कर ले कि लॉस ड्यू टू, पहला जो है लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड लॉस। तो यहाँ पे हेड लॉस आप लोग निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे जो होगा, मान लो कि पाइप कुछ इस तरह का है, आपका पाइप कुछ इस तरह का आ रहा था एक सर्टेन डायमीटर का, और उसके बाद क्या हो गया हमारा, सर्टेनली हमने क्या किया, दूसरे डायमीटर का यूज कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ का एरिया अगर देखा जाए इस सेक्शन का, तो यहाँ पे डायमीटर D है और वेलोसिटी फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह, और यहाँ का प्रेशर अगर P1 है और वेलोसिटी जो है वो V1 है और एरिया जो है यहाँ पे क्या है, A1 है। इस सेक्शन को हमने 1 1 मान लिया और हमने देखा कि उसके बाद क्या हो गया, हमारा फिर से पाइप इनलार्ज हो गया है कुछ इस तरह। तो जैसे इनलार्ज हुआ है तो क्या होगा, एडीज यहाँ पे फॉर्म होगा, बिकॉज फ्लो जो होगा सर्टेनली बहुत ज्यादा हो जाएगा और टर्बुलेंस आना स्टार्ट होगा, तो इसे बोला जाता है एडीज। और इस सेक्शन को हमने मान लिया है कि Q2 सेक्शन है। ओके, यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी जो है, तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि P2 और V2 और एरिया जो है या डायमीटर जो है ज्यादा हो गया है तो उससे एरिया जो होगा वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे जो हेड लॉस जो होता है, हेड लॉस जो होगा वो दैट इज इक्वल टू V1 - V2 का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g ड्यू टू द सडन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, अगर इसको अगर प्रूफ भी करना चाहते हैं तो प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो इस सेक्शन को हमने मान लिया है 2 लेट अस अज्यूम दिस इज 2 सो हमने मोमेंटम इक्वेशन अकॉर्डिंग टू मोमेंटम इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम, आपने मोमेंटम इक्वेशन अभी नहीं पढ़ा होगा। मोमेंटम इक्वेशन क्या बोलता है कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन, मान लो कि इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें, मान लो कि इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के लॉन्ग अगर लगाएं तो समेशन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स P1 इंटू A1, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू A1 प्लस यहाँ का प्रेशर अब चेंज हो गया है, तो यहाँ पे मान लिया कि ये वाला प्रेशर जो है वो क्या है, दैट इज मैंने बोल दिया कि दिस इज P डैश और यहाँ पे भी P डैश, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P डैश इंटू यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 और यहाँ पे अगर लिखा जाए इस तरह का, अगर हमने लिया है माइनस P2 इंटू A2 दैट इज इक्वल टू रो क्यू V2 माइनस V1। तो ये हमारा टोटल का टोटल फोर्स है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में, और ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रो क्यू इंटू V2 माइनस V1। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, P1 अगर लेट हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम दिस P1 इज इक्वल टू P डैश, हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ का जो प्रेशर है वो यहाँ का भी प्रेशर है, तो क्या हो जाएगा आपका P1A1 और यहाँ पे भी अगर हमने लिखा P तो क्या हो जाएगा प्लस P इंटू P1 इंटू A2 माइनस A1 माइनस P2 इंटू A2 दैट इज इक्वल टू रो क्यू V2 माइनस V1। तो यहाँ से P1A1 और P1A1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया, अगर A2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इंटू A2 दैट इज इक्वल टू रो क्यू V2 माइनस V1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमने अप्लाई किया बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 और 2 पे, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा आपका P1 बाई गामा प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 दैट इज इक्वल टू P2 बाई गामा प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2 प्लस सम हेड लॉस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको अगर लिखा जाए तो मान लो कि एज्यूम कर लिया कि दोनों एक ही पे है, डेटम हेड एज्यूम Z1 इज इक्वल टू Z2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा P1 माइनस P2 बाई गामा प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g दैट इज इक्वल टू हेड लॉस। ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे P1 माइनस P2 की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो 1 एंड 2 से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 की वैल्यू हमने रख दिया है, तो P1 माइनस P2 कितना है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो क्यू V2 माइनस V1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रो क्यू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई A2 और गामा तो पहले से ही है तो गामा भी यहाँ पे पुट कर दिया, गामा प्लस और ये कितना आ गया, तो दैट इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, सो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g एंड दैट इज इक्वल टू हेड लॉस। तो यही हेड लॉस हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बाई A2 को क्या लिख सकते हैं, और रो कैंसिल हो जाएगा, गामा को भी लिख सकते हैं रो इंटू जी, तो क्या हो जाएगा V2 इंटू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई जी प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g दैट इज इक्वल टू हेड लॉस। तो यहाँ से हेड लॉस क्या लिख सकते हैं, V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 और 2g हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे 2 भी होगा ना यहाँ पे, बिकॉज G है तो यहाँ से 2V2 होगा ना, या अगर 2G हमने एलसीएम लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 2V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो यहाँ से 2V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, तो 2V2 स्क्वायर में से एक V2 स्क्वायर गया तो क्या हो गया आपका V2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो क्या आ रहा है, आप आ जाएगा आपका V1 माइनस V2 हो जाएगा, आपका V1 माइनस V2 ही तो आएगा, देखो आप देखोगे तो V1 माइनस V2 आपका आ जाएगा यहाँ से। अगर यहां से देखा जाए स्क्रीन शेयर हो रहा है? नो सर।
अभी जस्ट रुकिए। हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि जैसे एलसीएम हमने 2g लिया है तो 2g जैसे यहाँ सॉरी यहाँ पे रो कैंसिल हो गया तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई आपका q बाई a2 को हमने v2 लिख दिया है और यहाँ पे g प्लस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g दैट इज इक्वल टू हेड लॉस। तो यहाँ से हेड लॉस जो हो जाएगा आपका, हमने एलसीएम ले लिया है कितना 2g, तो यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 और यहाँ से प्लस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ से हेड लॉस जो हो गया सडन एक्सपेंशन के वजह से कितना आ गया v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। यही चीज को तो हमने लिखा था, इसको डिराइव भी हमने किया, कितना है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। इसी को अगर हमने यहाँ से अगर कॉमन ले लिया, v1 स्क्वायर को आप कॉमन ले लो तो देखो क्या आ रहा है, आप यहाँ से अगर v1 स्क्वायर बाई 2g को कॉमन ले सॉरी v1 स्क्वायर को कॉमन ले लो तो HL कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से v1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, v1 स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस v2 बाई v1, सो 1 माइनस v2 बाई v1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g बाहर ले लिया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, v2 बाई v1 को क्या लिख सकते हैं, अरे a1 v1 इज इक्वल टू कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं इसको, कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा v2 बाई v1 कितना हो जाएगा, v2 बाई v1 a1 बाई a2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा HL इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई 2g 1 माइनस a1 बाई a2 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग एक कांस्टेंट बोलते हैं, तो HL इज इक्वल टू k टाइम्स v1 स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे k जो है हमारा क्या है, k की वैल्यू जो है वो क्या है 1 माइनस a1 बाई a2। तो या तो आप इस तरह हेड लॉस सडन एक्सपेंशन से लिखो या दैट इज इक्वल टू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। इस k की वैल्यू को बोला कि एक कांस्टेंट हमारा है जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस a1 बाई a2 का होल स्क्वायर। So this is all about the sudden expansion से हमारा जो हेड लॉस होगा दैट इज इक्वल टू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। उसी तरह दूसरा माइनर हेड लॉस जो है, दूसरा माइनर हेड लॉस है जिसको बोला जाता है सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने लार्जर डायमीटर यूज कर रहा था, उसको एक हमने फिर से स्मॉलर डायमीटर को यूज किया, तो हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह डायमीटर हमने लार्जर डायमीटर को यूज किया और सडनली हमने क्या कर दिया, स्मॉलर डायमीटर को यूज करना स्टार्ट कर दिया, कुछ इस तरह। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, सडनली आपका देखा जाए तो कुछ इस तरह का फ्लो हुआ और फिर जाके ये टच हुआ कुछ इस तरह और इधर से भी कुछ इस तरह। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बताया गया था एक चीज जिसको बोला गया था क्या, वीना कॉन्ट्रैक्टर। हाँ वीना कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन गया। अब यहाँ पे जो हमारा है, मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है, अब यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गया ड्यू टू द डिक्रीज इन द एरिया, एरिया जो हमारा डिक्रीज हो गया है। तो फिर से यहाँ पे हमने बोला कि ये सेक्शन 2 और ये तो हमारा वीना कॉन्ट्रैक्टर है ही है। तो इसके कारण जो सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो हमारा होगा हेड लॉस जो होगा, सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो होगा वो कितना हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं VC माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। बोलो ज्यादा एरिया हमारा क्या है, अभी भी हमने देखा तो VC की वैल्यू जो होगा वो V2 से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एरिया यहाँ का कम है और एरिया इज इक्वल टू Q बाई V, तो हमारा सॉरी V इज इक्वल टू Q बाई A, तो A जब कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो वेलोसिटी एट वीना कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, V2 स्क्वायर को कॉमन ले लो, V2 स्क्वायर को जब कॉमन लेगो तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे अगर आप V2 को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको प्रोसीड करिए, तो HL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो गया V2 स्क्वायर बाई 2g। हमने V2 को कॉमन ले लिया है तो क्या बच गया, VC बाई V2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से फिर से अगर हमने 1 और 2 पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया 1 और 2 पे, तो क्या हो जाएगा AC इंटू BC दैट इज इक्वल टू A2 इंटू V2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VC बाई V2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर VC बाई V2 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू A2 बाई AC, पुट द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा HL इज इक्वल टू
V2 स्क्वायर बाई 2G इंटू BC बाई B2 के जगह पे हमने रख दिया A2 बाई AC, तो यहाँ से हो गया आपका A2 बाई AC माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमने एक टर्म पढ़ा था, इसी को हम लोग अगर आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2G, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई A2 बाई AC लिख सकते हैं, माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमने एक टर्म पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC, CC की वैल्यू हमने क्या लिखा था कि एरिया एट द वेना कॉन्ट्रैक्टर डिवाइडेड बाई एरिया AC बाई A1, बोला था कि जो भी एरिया होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज द एरिया एट द वेना कॉन्ट्रैक्टर डिवाइडेड बाई सेकंड सेक्शन। तो यहाँ पे AC बाई A2 भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने कुछ गलत किया, यहाँ पे AC बाई A2 होगा। हाँ, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, HL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर बाई 2G इंटू 1 बाई CC का जो है 1 बाई CC माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये भी आप कभी कभी आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ही दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम लोग इससे भी लिख सकते हैं, या HL इज इक्वल टू K V2 स्क्वायर बाई 2G। तो आपका K का वैल्यू क्या है, तो K की वैल्यू जो है यहाँ पे K इज इक्वल टू 1 बाई CC माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 बाई CC माइनस 1 का होल स्क्वायर, वेयर CC इज द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे जो CC है, वेयर CC इज द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपका CC है। बताओ इसमें किसी को डाउट है तो आपका मेजर जो सडन एक्सपेंशन के कारण जो हेड लॉस था वो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, आपका सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से HL इज इक्वल टू K V2 स्क्वायर बाई 2G याद रखो, या 1 बाई CC माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर बाई 2G, वहां से हमने निकाला। उसी तरह हेड लॉस ड्यू टू एंट्री जो होगा आपका, एंट्री ऑफ द पाइप हेड लॉस, तीसरा जो माइनर हेड लॉस एट एंट्री पे क्या होगा, तो हमने मान ला कि ये हमारा रिजर्वॉयर है, दिस इज आवर रिजर्वॉयर, और यहाँ से आपका ये पाइप है, यहाँ से हमने पाइप को ऐड किया है, और ये हमारा रिजर्वॉयर है। तो यहाँ पे जो है दिस इज द एंट्री है, और ये हमारा है एंट्री ऑफ द पाइप, एंट्री, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो V है। तो यहाँ पे जो एंट्री की वजह से जो होगा HL इज इक्वल टू फिर से K V स्क्वायर बाई 2G, क्या हो जाएगा, K V स्क्वायर बाई 2G, और एंट्री पे जो K की वैल्यू होगी वो याद रखिएगा 0.5। तो यहाँ से एंट्री पे हम लोग हेड लॉस को लिख सकते हैं HLE, E फॉर एंट्री मैं लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 0.5 V स्क्वायर बाई 2G। उसी तरह चौथा अगर हेड लॉस की बात की जाए, फोर्थ हेड लॉस, दैट इज इक्वल टू, तो वो हम लोग लिख सकते हैं क्या, जो एग्जिट पे होगा हमारा, फोर्थ वन, हेड लॉस एट एग्जिट पे जो हमारा हेड लॉस जो होगा वो कितना हो जाएगा, HL इज इक्वल टू K V स्क्वायर बाई 2G, और यहाँ पे K की वैल्यू जो होगा एग्जिट पे दैट इज इक्वल टू 1, HL की वैल्यू जो हो जाएगी V स्क्वायर बाई 2G। उसी तरह हमारा जो होगा पाइप बेंड की वजह से भी एक हेड लॉस होगा, पाइप जो होगा हेड लॉस ड्यू टू पाइप बेंड। तो यहाँ पे भी हेड लॉस जो होगा वही होगा, HL इज इक्वल टू K इंटू V स्क्वायर बाई 2G। लेकिन यहाँ पे K जो है हमारा क्या है, पाइप बेंड कांस्टेंट है, जो K जो है हमारा क्या है, पाइप बेंड कांस्टेंट, और ये पाइप बेंड कांस्टेंट जो है डिपेंड करेगा किस पे, तो K जो है हमारा डिपेंड करेगा फंक्शन ऑफ किस पे, तो हमारा सबसे पहले तो एंगल ऑफ बेंड, कितने से बेंड हो रहा है, एंगल ऑफ बेंड, रेडियस ऑफ पाइप और रेडियस ऑफ बेंड, ये तीनों पे डिपेंड करेगा। अगर पहला हम लोग डिस्कस करें कि रेडियस ऑफ पाइप, तो पाइप की रेडियस जितनी ज्यादा होगी, R की वैल्यू अगर हमारा पाइप का जो है ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा बेंड को जो पाइप बेंड कांस्टेंट है वो बढ़ेगा या घटेगा, बोलिए। रेडियस हमारा बढ़ता जा रहा है, मतलब बेंडिंग हम कम कर रहे हैं ना, तो K की वैल्यू जो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। उसी तरह अगर रेडियस ऑफ बेंड भी है, रेडियस ऑफ बेंड की वैल्यू को भी बढ़ा रहे हैं, रेडियस ऑफ बेंड R, अगर बेंडिंग जो है हमारा
वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंड कोफिशिएंट जो है वो घटेगा। सिमिलरली अगर हमने एंगल ऑफ बेंड को बढ़ाया है, हमने जो है एंगल ऑफ बेंड जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो के की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? आपका लॉस कोफिशिएंट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा बेंड करोगे उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तीसरा फैक्टर अगर लिखा जाए, तो तीसरा फैक्टर जो हो जाएगा कि एंगल ऑफ बेंड पे अगर देखा जाए, एंगल ऑफ बेंड, तो जैसे थीटा की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो क्या है, बेंड कोफिशिएंट जो है वो भी बढ़ता जाएगा, या लॉस कोफिशिएंट भी बोलते हैं। जो जितना हमने के यूज किया है सब हमारा लॉस कोफिशिएंट है। क्वेश्चन में अगर लॉस कोफिशिएंट बोल रहा है तो वही चीज है। हम लोग एंट्री पे हमने लॉस कोफिशिएंट 0.5 लिया है, एग्जिट पे हमने के की वैल्यू 1 लिया है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन पे जो लॉस कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 1/cc - 1 का होल स्क्वायर। उसी तरह हमने एनलार्जमेंट पे भी हमने देखा है 1 - a1/a2 का होल स्क्वायर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंड जो है हमने यहाँ पे दिखाया है कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंड। अगर आपका स्टैंडर्ड टी शेप है, आप देखते होगे कि जाते होगे मार्केट में, आपको पाइप का फिटिंग हो रहा है और आपने बोला कि हमें इस डायरेक्शन में भी फ्लो चाहिए, इस डायरेक्शन में भी चाहिए और उधर भी चाहिए, तो वो क्या बोलता है आपको कि जाइए मार्केट से टी ले आइए। आप जैसे स्टैंडर्ड टी शेप जाके बोलोगे तो वो आपको दे देगा टी शेप का। मतलब एक पाइप से हमने 3 जगह कन्वर्जन किया है, उसका कन्वर्जन जो है हमने 3 जगह किया है, वाटर को 3 जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अगर स्टैंडर्ड टी हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारा जो लॉस कोफिशिएंट होगा दैट इज इक्वल टू 1.5। उसी तरह अगर स्टैंडर्ड एल्बो हम लोग यूज किए हैं, स्टैंडर्ड एल्बो क्या, तो एल्बो जो है वो आपका अगर यूज किया तो 0.9, उसमें भी आता है, आपसे पूछेगा 45 डिग्री एल्बो या 90 डिग्री एल्बो। अगर 45 डिग्री एल्बो यूज किया है तो दैट इज इक्वल टू 0.4। जैसे पाइप का 90 डिग्री एल्बो अगर देखा जाए तो 90 डिग्री एल्बो कुछ इस तरह का, इस तरह आपको है कि हाँ आपका एक पाइप है, पाइप से हमें इस डायरेक्शन में भी फ्लो ले जाना है, तो ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री बेंड। उसी तरह 45 डिग्री है तो कुछ इस तरह हमने बना दिया है। उसी तरह फुट बाल्ब अगर देखा जाए तो वो उसकी जो आपकी कोफिशिएंट होगी 1.5। उसी तरह गेट बाल्ब हाफ ओपन जो होगा, गेट बाल्ब जो होता है वो बहुत तरह का होगा आपका क्वार्टर ओपन होता है, 3 क्वार्टर ओपन होता है, हाफ ओपन होता है। तो हाफ ओपन जनरली यूज किया जाता है, तो इसकी वैल्यू को आपको 5 पॉइंट ये क्वेश्चन में दिया रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। एसी के एग्जाम में कभी कभी आपको याद रखना होगा, गेट के एग्जाम में आपको दिया रहेगा जनरली। एंगल वाल्व यूज कर रहे हैं तो इसका जो बेंड कोफिशिएंट होगा दैट इज इक्वल टू 5। हमें कोफिशिएंट तो बेंड की वजह से हमें कौन जो हेड लॉस जो होगा, माइनर हेड लॉस दैट इज इक्वल टू k × v²/2g। हम k की वैल्यू अब जैसा हमारा दिया हुआ है किस तरह का बेंड हो रहा है उसके हिसाब से हमने k की वैल्यू रखा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो मालूम है, डिवाइडेड बाय 2g किया, तो वहां से हमें कोफिशिएंट पता चल गया। बताइए यहां तक किसी को डाउट? अभी तक हमने 2 तरह का हेड लॉस डिस्कस किया है, मेजर हेड लॉस और माइनर हेड लॉस। मेजर हेड लॉस में मैंने बोला कि मेजर हेड लॉस कैन बी कंप्यूटेड बाय द Darcy-Weisbach equation or Chezy's equation, or we have seen the expression of the measure head loss that is equal to FLV²/2g according to the Darcy and 4LV² divided by C²d due to the Chezy's। उसके बाद हमने देखा कि माइनर हेड लॉस जो हमने दिखा, तो there are 5 types of minor head loss generally that is I have discussed। The first one is loss due to the sudden expansion और sudden enlargement हुआ, तो उसकी वजह से क्या हो गया, v1 - v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। उसी तरह सडन कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो गया, k × v2²/2g, वेयर k की वैल्यू जो है 1/cc - 1 का होल स्क्वायर, वेयर cc इज द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। उसी तरह हमारा एंट्री पे हमारा जो लॉस होगा दैट इज इक्वल टू k v²/2g, और k की वैल्यू जो होगी वहां पे 0.5, और एग्जिट पे जो होगा वो k v²/2g, k की वैल्यू 1। और जो हमारा बेंड की वजह से होगा, तो बेंड की वजह से हमने बोला कि जो होगा वो बेंड कांस्टेंट होगा वो 3 चीज पे डिपेंड करेगा, दैट इज रेडियस ऑफ द बेंड एंड कितना आपका पाइप ऑफ द रेडियस ऑफ द पाइप ऑफ द बेंड और एंगल ऑफ द बेंड, इस तीनों पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा उस चीज को भी डिस्कस किया। एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ के फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंड यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इसको आपको लिख लेना है और याद रखना है। तो लेट अस टेक फ्यू प्रॉब्लम्स, और कल भी इस पे थोड़ा सा और डिटेल में क्वेश्चन किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है 1993 में, द हेड लॉस ड्यू टू द सडन एक्सपेंशन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो ये तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आया था कि हाँ क्या हो जाएगा आपका, तो हेड लॉस ड्यू टू द सडन एक्सपेंशन की वजह से हमने अभी बताया कि क्या था, बताओ। ऑप्शन डी सर। हाँ कौन सा होगा, डी ऑप्शन। डी। हाँ यही गड़बड़ कर जाओगे, कोई ए डी नहीं है, डी ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑप्शन को इस तरह दिया गया है, वो v1 - v2 पूरा का पूरा होल स्क्वायर है। आप डेरिवेशन में आप देखोगे तो वहां पे कुछ इस तरह था, तो इस चीज का ध्यान रहे। यहाँ पे क्या था, HL इज इक्वल टू v1 - v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g।
दूसरा क्वेश्चन जो है गेट 2015 2 मार्क्स आईआईटी कानपुर ने जब कंडक्ट किया था, तो 2 रिजर्वायर आर कनेक्टेड थ्रू 930 मीटर लॉन्ग 0.3 मीटर डायमीटर पाइप। एक रिजर्वायर को कनेक्ट किया गया, 2 रिजर्वायर जिसके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 930 मीटर लॉन्ग 0.3 मीटर डायमीटर इन पाइप विच हैज ए गेट वॉल्व। द पाइप इंट्रांस इज शार्प। आपका लॉस कोफिशिएंट देखो यहाँ पे दे दिया है, आपका एंट्री पे लॉस कोफिशिएंट जो है हमने बताया था 0.5 है। अगर क्वेश्चन में कुछ और बोलता 0.6 है तो 0.6 ही लेते हैं। एंड द वाल्व इज हाफ ओपन है और उसका लॉस कोफिशिएंट दिया हुआ है कितना 5.5। तो ये कौन कौन सा लॉस है जो इंट्रांस इन द शार्प, ये कौन सा लॉस है, ये माइनर लॉस है। ये भी हमारा जो है वाल्व इज हाफ ओपन, दिस इज आल्सो माइनर लॉसेस। द हेड डिफरेंस बिटवीन द 2 रिजर्वायर इज 20 मीटर। आपका जो एचएल जो है टोटल हेड लॉस जो है, मान लो कि रिजर्वायर कुछ इस तरह है, आपका जो रिजर्वायर है उसका हेड डिफरेंस, मान लो कि एक रिजर्वायर ये है, लेट अस अज्यूम दिस इज द फर्स्ट रिजर्वायर और इससे पाइप कनेक्ट है कुछ इस तरह, पाइप इस तरह कनेक्टेड है और यहाँ पे जो है आपका दूसरा रिजर्वायर जो है कुछ इस तरह। तो इसके बीच का डिफरेंस जो है वो दे दिया है आपको कितना, अगर यहाँ का देखा जाए इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो एचएल की वैल्यू जो है पूरा का पूरा हेड लॉस जो है वो दिया हुआ है आपको, एचएल इज इक्वल टू कितना, तो वो दिया हुआ है द हेड डिफरेंस बिटवीन द 2 रिजर्वायर इज 20 मीटर, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। और पाइप का जो लेंथ है वो कनेक्टेड है 2 रिजर्वायर किससे, तो 930 मीटर लॉन्ग है, दिस इज 930 मीटर, दिस इज 930 मीटर लॉन्ग। और यहाँ पे क्या है 0.3 मीटर, इसकी डायमीटर जो है वो 0.3 मीटर है। और तो बोला assume the friction factor for the pipe as 0.03 and the G is equal to 10 meter per second square. So the discharge in the pipe according to for all accounting for all minor and major losses. मतलब कि जो आपको दिया है, जो माइनर लॉस आपको assume करना है वो आपको दे दिया है। कौन कौन सा माइनर लॉस हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, एंट्री, बोलो एंट्री ऑफ द पाइप, और जो आपका है ये आपका जो बेंड की वजह से, और जो है आपका जो है मेजर हेड लॉस जो होगा, मेजर हेड लॉस जो है वो किसके कारण, फ्रिक्शन फैक्टर की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेड लॉस, टोटल हेड लॉस जो होगा, टोटल हेड लॉस दैट इज इक्वल टू हेड लॉस एट एंट्री प्लस हेड लॉस ड्यू टू किसके वजह से, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या, वाल्व जो है, वाल्व इज हाफ ओपन, तो हेड लॉस ड्यू टू बेंड, हेड लॉस ड्यू टू बेंड प्लस डार्सी वेस्टबैच फ्रिक्शन फैक्टर की वजह से। तो एचएल हमने एफ लिखा है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, माइनर लॉस है, ये दिस इज द माइनर लॉस, और ये जो है हमारा क्या है, मेजर हेड लॉस। अब टोटल हेड लॉस जो है वो 20 मीटर है, तो यहां से आप लगा दो टोटल हेड लॉस, एचएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हेड लॉस कोफिशिएंट दिया हुआ है k इंटू बी स्क्वायर बाई 2g प्लस k इंटू बी स्क्वायर बाई 2g प्लस FL बी स्क्वायर बाई 2GD। अब यहाँ से टोटल हेड लॉस जो है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर, सो 20 मीटर। अब ये जो है वो के आपका जो क्या एंट्री की वजह से, तो 0.5 बी स्क्वायर बाई 2g प्लस आपका जो देखो ये जो गेट वॉल्व हाफ ओपन जो है इसके कारण कितना है कोफिशिएंट 5.5, तो के की वैल्यू 5.5 बी स्क्वायर बाई 2g प्लस FL, एफ की वैल्यू दी हुई है आपकी, एफ की वैल्यू कितनी है, डार्सी वेस्टबैच फ्रिक्शन फैक्टर दैट इज 0.03, यहाँ पे वैल्यू रख दो 0.03 इंटू लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द पाइप कितना है 930 मीटर, सो 930 इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इंटू डायमीटर, डायमीटर ऑफ द पाइप दिया हुआ है कितना, डायमीटर ऑफ द पाइप जो है वो 0.3 मीटर, सो 0.3, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो आप, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो सारा वैल्यू तो दिया हुआ है, अगर मैं देखूं कैलकुलेटर से तो इसको देखो कितना आ रहा है बी की वैल्यू, अगर मैं चेक करूं यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू 0.5 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 लेना है आपको जी, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 5.5 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 प्लस ये वाला वैल्यू देख लो कितना आ रहा है 0.03 इंटू 930 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 0.3, तो ये वैल्यू जो आ रहा है 4.65 बी स्क्वायर, और ये वाला भी वैल्यू अगर चेक कर ले तो दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाई 20
प्लस 4.65, तो पूरा का पूरा वैल्यू जो आ रहा है 4.95 वी स्क्वायर, 20 इज इक्वल टू 4.95। आप लोग भी चेक करिए और देखो सही आ रहा है कि यस सर नहीं। 4.95। 20 डिवाइडेड बाई 4.95, तो यहाँ से कितना आ गया एवरेज वेलोसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 4.95, तो यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 4.95, तो दिस वैल्यू इज कमिंग 2.01 मीटर पर सेकेंड। चेक करिए वैल्यू यही आ रहा है 2.01 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या डिस्चार्ज निकाल लो, आपको डिस्चार्ज पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू A इंटू वी। आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया है, तो डिस्चार्ज इन द पाइप क्या हो जाएगा, तो डिस्चार्ज इन द पाइप अगर देखा जाए तो डिस्चार्ज इन द पाइप, डिस्चार्ज इन द पाइप दैट इज इक्वल टू A इंटू एवरेज वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डायमीटर, डायमीटर आपका कितना है 0.3 का होल स्क्वायर, सो 0.3 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो अभी हमने निकाला है 2.01, तो इट विल बी 0.25 पाई इंटू 0.3 स्क्वायर इंटू 2.01, so it is coming 0.142 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो सबका यही आ रहा है, यस सर 0.14207। मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यही था, ये टफ थोड़ी है। तो आपको जो जो हेड लॉस बोलेगा, इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में बोलता कि एज्यूम द माइनर हेड लॉस को आपको जीरो कर देना है। आपको माइनर हेड लॉस नहीं लेना है, सिर्फ आपको मेजर हेड लॉस लेना है। और बोलेगा कि दोनों मेजर हेड लॉस को लेना है, या तो मेजर हेड लॉस इससे निकालो, या तो दूसरा मेजर हेड लॉस बोलता कि यहाँ पे अगर, तो वो आपको चूज करना होगा कि कौन सा हम लगा सकते हैं, चेजिस का लगाएं या फ्रिक्शन फैक्टर। तो यहाँ क्वेश्चन में फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है। ओके, अगर मान लो कि यहाँ पे चेजिस कोफिशिएंट दिया रहता, तो फिर हम लोग क्या है, चेजिस इक्वेशन से जो मेजर हेड लॉस आया है उसको हम लोग लेते। तो यहाँ पे ये इस तरह आया है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, थैंक यू।